अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। All right, so we're going to start now. Assalamu alaikum, everyone. My name is Afra Arshad, and I'm clinical and counseling psychologist. I am the founder of Team Therapy Wellness, and we are on 18th episode today of Opening Mind series. We have a wonderful speaker with us, Miss Ushna Khan. Thank you so much for giving us your time, for joining us for today's session. Today, we will be talking about understanding neurodivergent behavior, how these behaviors are just different but not defected. Just because we are not able to understand them, or just because we think that it is something out of the box, we have started labeling them as a difficult category or as a deficit part category of people, but they are just differently abled, but they don't have any deficits or any abnormality in them. So today, Ms. Ushna will be telling us about how neurodivergent behavior can be adapted to normal situations, or how we can understand. I would also like to thank my sponsors, Wellbeing Hub, Mental Health Coach by Amna, and We Protect You, because I believe that they have been supporting us throughout this journey, and they play a very important role. Last but not the least, I'm also very much thankful to all the participants who have been with us, and I'm going to give the mic to Ushna, and she is going to take it over. If you have any questions, if there's anything that you want to say, please, you can always raise your hand. The chat box is always open. She would be, happy to cater you. She would love to have a discussion with you. So use this opportunity to discuss and learn new things and to share your own experience. Thank you so much. Over to you, Ms. Ushna. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much, Afra. And hope you're doing all well. We are going to be discussing about a very important topic, as Ms. Afra mentioned, that is about understanding the neurodivergent behavior. Okay, so I saw the post in one of our groups where many of you mentioned that, okay, some have idea about it, some don't have an idea about it, some know someone who is neurodivergent. So we will be going into the topic. So before discussing what is a neurodivergent behavior, I have a question for you guys. That whenever you see a child's behavior that is challenging, so what comes to your mind? So even if you see someone screaming or someone behaving out of the box, or you see any kind of behavior, what is the first thing that often comes in your mind? उष्णा प्लीज अपनी ना स्क्रीन फुल स्क्रीन कर दें, अगर कर सकती हैं तो. Sure. एक्चुअली मैं फिर चैट को नहीं फॉलो कर सकूंगी. चले ठीक है, इट्स फाइन, ऐसे भी ठीक है, नो प्रॉब्लम. I see very good answer. The child must be having some issues. There must be something triggering that kid. So that is something that comes from the perspective of understanding. Okay, but not everyone looks at it in that way. Okay, if mostly for the parents or for anyone who is observing just that behavior, their first question is, or their first thought in their mind is, how do I stop it? Okay, पेरेंट्स के लिए भी होता है कि अच्छा बाहर बच्चा अगर कोई जिद करने लग गया, मार्केट के अंदर कुछ चीज से जिद करने लग गया है, या वैसे इसका रैंडम कोई क्राइम स्टाइल आ गया है, या उसने शॉपिंग करना शुरू कर दिया, तो पेरेंट्स बिकम एम्बैरेस्ड. ठीक, और साइड वाले लोग क्या कहेंगे, आसपास वाले लोग देख के क्या सोच रहे होंगे. सो दैट इज द फर्स्ट पर्सपेक्टिव in the minds of most of the people that ends up happening. I see one answer that says normally लोग कहते हैं बच्चा नॉर्मल नहीं है. Or what might be causing that behavior. That's a very good response, Anash.
We will go into the discussion about this in our further slides. Let's come back to our topic of neurodiversity. Basically, न्यूरोडाइवर्जन है क्या, न्यूरोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से राइज होता है? ये कॉन्सेप्ट यहीं से राइज होता है कि हर इंडिविजुअल, हर ह्यूमन बीइंग, हर चाइल्ड, उसका एक अपना पर्सपेक्टिव है। वो जिस तरीके से इन्वायरमेंट की चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, जिस तरीके से उन चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को। Okay, is voice better now? Okay. Let me know if it's not audible again. So, okay, thank you. So what was I saying कि न्यूरोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट इस एरिया से आता है, इस कॉन्सेप्ट से आता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स उनकी चीज़ें एब्जॉर्ब करने का, एनवायरनमेंट से उन चीज़ों को प्रोसेस करने का एंड देन उसको रिस्पॉन्ड करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। देयर कॉग्निटिव वेरिएशंस दैट एग्जिस्ट एंड दे आर फॉर्म ऑफ द डाइवर्सिटी। यहाँ पे मैं दो टर्म्स का मेंशन करूंगी, यहाँ पे भी हैं आगे। It's my there just a second. This that there are two terms that emerged from this mindset, which are the neurodivergent and neurotypical. So ये terms कहाँ से आती हैं? Neurotypical is basically that it refers to the someone who has brain functions, behaviors, and their processing is considered very standard. ठीक है, जिसको हम typically देखते हैं। They have no idea कि उनको कभी किसी सब्जेक्ट उनके बारे में कभी राइज नहीं किया है। They have hit all their developmental or behavioral milestones around at the same time, around the same age. उन्होंने चलना फिरना बोलना, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल नियरली इक्वल है, ठीक है। और जब वो ग्रो अप भी करते हैं, जब वो इंडिविजुअल्स एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनका ब्रेन फंक्शन भी मोर और लेस सेम वे में बिहेव करता है, सेम वे में फंक्शन करता है, हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आता है। सो दैट इज द न्यूरोटिपिकल। अब यहाँ पे न्यूरोडाइवर्सिटी और न्यूरोडाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट आता है कि देयर आर सम इंडिविजुअल्स, सम चिल्ड्रन जिन्होंने अपने डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स हैं, whether they are from the walking, talking, communication, उन्होंने अपनी एज के ऊपर हिट नहीं किए हैं, या उन्होंने लेट बोलना शुरू किया है, या उन्होंने अभी तक वो कम्युनिकेशन स्टाइल डेवलप ही नहीं किया है जो कि हम टिपिकली स्टैंडर्ड वे में देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनको बजाय इसके कि हम रॉन्ग या प्रॉब्लमेटिक लेबल कर दें कि ओ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम, कुछ गलत है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पर हम एक टर्म लेके आते हैं न्यूरोडाइवर्सिटी। न्यूरोडाइवर्सिटी हर उस डिफरेंस को एम्ब्रेस करती है, वो रिकग्नाइज करती है कि जो ब्रेन फंक्शन है और जो बिहेवियर ट्रेट्स हैं वो इंडिकेटर है कि ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरीके से डाइवर्स है। हमारे पास डिफरेंट किस्म की डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है और हर कोई एक सेम वे में फंक्शन नहीं कर सकता है और ना ही करता है। So ये डिफरेंस डिफरेंट एरियाज में हो सकते हैं। दे कुड बी इन द एरियाज ऑफ द बिहेवियर। फॉर एग्जांपल आप उनके बिहेवियर्स में डिफरेंस देखेंगे। इसके अलावा we will see the difference in how in the speech their उनकी लैंग्वेज फॉर एग्जांपल डेवलप नहीं हुई होगी, उनकी एज के मुताबिक उनका कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होगा, उनकी फ्रेंडशिप्स का अंदाज मुख्तलिफ होगा। सो we are not aware कि so we are not the ones to label them neurodivergent, ठीक है। कोई भी ओके आप में से या मेरे में से जिसको क्वालिफिकेशन नहीं है जो उसको डायग्नोज कर सके या उसको लेबल कर सके, हम उसको लेबल नहीं कर देंगे, ठीक है। बिकॉज एवरी इंडिविजुअल देयर आर डिफरेंसेस। कभी हो सकता है हम हमारी फ्रेंडशिप का अंदाज मुख्तलिफ हो जाए, कभी हम एक्सट्रोवर्टनेस में जा रहे हों, कभी हम थोड़े से इंट्रोवर्ट ट्रेट्स के साथ आ रहे हों, हो सकता है किसी कोई सर्टेन इवेंट की वजह से हमारे पर इफेक्ट आया हो। सो वी विल नॉट लेबल दैट न्यूरोडाइवर्जेंट। उस चीज को लेबल करने के लिए देयर आर सम प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग इन द फील्ड, उनके पास एक सर्टेन क्वालिफिकेशन है, certain experience है। They are the one who are going to mention, okay, this person is neurodivergent, this person is not, and then there are different conditions that come under the neurodiversity as well, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। And so basically the concept over here is कि जब भी आप कोई behavior देखें, instead of labeling it as a problematic or labeling it as wrong or as label it as something different, okay, मैंने इस behavior को पहले नहीं देखा है, ठीक है, मे बी इस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, उसके पीछे रीजन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, दैट द बिहेवियर इज अकरिंग ड्यू टू समथिंग, ओके, समथिंग दैट इज रॉन्ग with the child or something that is not right for the child or something that the child or individual is not able to express.
एंड सर ने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि हाउ इज इट कॉज्ड बाय एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स. सो इट कैन कम इन बोथ ऑफ द फैक्टर्स, यू नो. अभी हम आगे जाके इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं. So some are genital neurodevelopmental conditions, okay, like autism, ADHD, etc. Here, some are speech and communication issues, some are dyslexia, dysgraphia, some are intellectual differences, and some might be environmental causes as well. For example, some might going through a traumatic incident and ended up having their brain depth injury, or which affected their language, which affected their speech, or which affected any of their ability. ओके. एंड वहाँ पे हमें उनके बिहेवियर्स में डाइवर्जन शो होना शुरू हो गई. उनके बिहेवियर्स में, उनके कम्युनिकेशन स्टाइल में डिफरेंस शो हो गया. सो दैट इज something that can be caused by the genetics, and that can be caused by the environment as well, and that can be the combination of two as well. So I will not be going into the details of these conditions because I'm not sure is everyone from the field of psychology. But let me just give you a very brief introduction. For example, autism and ADHD are both the neurodevelopmental conditions. In autism, we see that the areas of the social and communication areas are affected, and we see some repetitive behaviors in children and in individuals. And then it has very specific criteria. I mentioning again and again कि इसको कोई भी लेबल नहीं कर सकता है कि ओके यू सी अ चाइल्ड 6 years old और वो कोई बातचीत नहीं कर रहा है और आप उसको लेबल कर दें कि ये बच्चा चूंकि कम्युनिकेट नहीं कर रहा है तो उसको ऑटिज्म है. नो. ऑटिज्म, ADHD, each and every condition has their own specific criteria. उसको एक प्रोफेशनल ही डायग्नोज कर सकता है. उसको मैं और आप ऐसे उसके लेबल नहीं कर सकते. एंड we have the right qualification to diagnose it. And then let's go towards the next slide. Let me show this thing. Okay. So what are the some neurodivergent behaviors? ये मैंने आपको कुछ conditions mention की हैं, but उसके अलावा यहाँ पे कुछ different behaviors भी mentions हैं. For example, अगर हम sensory distortions देखते हैं या हम बच्चों में या individuals में sensory issues देखते हैं. इसके मैं common example दूंगी कि अक्सर शादियों में या किसी और जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइस हो, बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं. वहाँ पे बच्चों का डिसरेगुलेटेड और डिस्टर्ब होने का लेवल पैटर्न डिफरेंट हो सकता है. वहाँ पे कुछ बच्चे वहाँ पे ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं नॉइस के. दे माइट कवर देयर ईयर्स और दे माइट स्टार्ट क्राइंग, और वहाँ पे होते हैं कि पता नहीं क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या इसको हो गया है. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द सेंसरी इश्यूज. सेंसरी डिस्टर्बेंसेस आपको ऑडिटरी भी हो सकती हैं लाउड नॉइसेस से, या कुछ बच्चों को बहुत कम नॉइस पसंद होती है. इसी तरह टेक्टाइल की भी हो सकती हैं कि कोई स्टफ, फॉर एग्जांपल कोई कॉटन का स्टफ पसंद नहीं है या कोई और खुरदरा स्टफ पसंद नहीं है. इट कुड बी विद द टेस्ट सेंसेशंस एज वेल कि कोई सर्टेन टेक्सचर खाना पसंद नहीं है. कि बच्चों में अक्सर पिटी ईटिंग बहुत ज्यादा आती है. वहाँ पे भी हम कह रहे थे कि बच्चा पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है, जिद करता है, खाने में जिद करता है. सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाई, कि उसके टेक्सचर में तो कोई इशू नहीं है, बच्चे को बहुत ज्यादा स्लाइमी तो नहीं लग रहा है, तो उसको कोई क्रिस्पी चीजें खाना तो पसंद नहीं है. सो दे आर ट्राइंग टू लाइक टेक दे ऑल सेंसरी चीजों, या तो वो सेंसेशंस को ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे होते हैं या पर्टिकुलर सेंसरी चीजों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं. देन वी सी द सोशल डिफरेंसेस. ये हर बच्चा फॉर एग्जांपल आके आपसे बहुत फ्रेंडली तरीके से नहीं मिलेगा, या दूसरे बच्चों के साथ अपनी एज के बच्चों के साथ नहीं खेलेगा, या उनका खेलने का अंदाज डिफरेंट होगा. वो मे बी इंडिपेंडेंट प्ले ज्यादा करें, या वो प्ले दूसरे बच्चे के साथ करें लेकिन अपना अपना खेलें. शेयरिंग या टर्न टेकिंग के कॉन्सेप्ट पे नहीं आ रहे हैं. So these are some of the social differences you would observe. And then other would be, main would be कि अच्छा कुछ बच्चे आई कांटेक्ट नहीं दे रहे हैं, आपकी आंखों में आंखें लेके बात नहीं कर रहे हैं, या आप उनको बुला रहे हैं तो दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देयर नेम्स. सो दीज आर सम ऑफ द बिहेवियर्स. इसके अलावा एग्जेक्टिव फंक्शनिंग में चैलेंजेस हो सकते हैं. ठीक है. एक कंसिडर के उसमें बच्चे की जो प्रोसेसिंग है एग्जेक्टिव लेवल के ऊपर, वो उसको टास्क नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं. उसको आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कप उठा के लाओ, तो वो कप में कंफ्यूज हो जाता है कि कप उठाना है, प्लेट उठानी है, क्या उठाना है. या आप उसको कहते हैं रेड कप वहां पर रख दो. सो यू आर गिविंग देम 1 step और 2 step इंस्ट्रक्शंस. उसमें उनको डिफिकल्टीज आ रही होती हैं. इसके अलावा कुछ बच्चों के स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं, स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं बहुत ज्यादा. कि फॉर एग्जाम्पल कि कुछ बच्चों को सिर्फ कार से खेलना पसंद है, कुछ बच्चों को किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसमें उनका डेवलप हो गया है, एंड दे जस्ट वांट दैट ओनली.
या उनको लाइनिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी है। इसके अलावा जो उनकी लर्निंग स्किल्स है, एकेडमिक स्किल्स आप कह रहे हैं, उसमें मे बी उनको रीडिंग में, राइटिंग में डिफिकल्टीज है या मैथ्स में डिफिकल्टीज है, उनको वो कंसेप्ट जो हाँ क्लास में हम देखते हैं कि क्लास में फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी वो चीज़ कंसेप्ट को ग्रैब कर पा रही है, बट कुछ बच्चे उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, उनके ग्रेड्स डाउन जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमें ये पर्सपेक्टिव लाने की ज़रूरत है कि ऑब्जर्व करें एंड देन एवेलुएट करें, असेस करें कि बेसिकली हर्डल कहाँ पे आ रही है, वेदर बच्चे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो देखें आगे हम जाके एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज कि बच्चा कर नहीं पा रहा है या बच्चा कर नहीं सकता है। सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। एंड देन वी सी दैट अच्छा इमोशनल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा इंटेंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा पीक पे जा रहा है, एक्सप्रेस करने का अंदाज बहुत ज़्यादा पीक पे जा रहा है, क्राइम बहुत ज़्यादा हो रही है, शाउटिंग बच्चा बहुत ज़्यादा करता है। इसके अलावा लैंग्वेज एबिलिटीज आ जाती हैं, कम्युनिकेशन वेरिएशंस आ जाती हैं, उनकी मेमोराइजेशन के अंदर डिफरेंस आ जाते हैं, तो इंट्रूसिव थॉट्स आ रही होती हैं उसमें वो आ जाती हैं। एंड देन एक पर्टिकुलर चाइल्ड की नीड हो सकती है कि उसको हर वक्त मूवमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, दे कैन नॉट सेट स्टिल, या उनको एक टास्क से दूसरे टास्क में वो जंप करते रहते हैं रैपिडली। इसके अलावा स्टिमिंग आ जाती है कि बच्चे डिफरेंट किस्म की हैंड मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, हाथों को फ्लैपिंग कर रहे होते हैं, हैंड फ्लैपिंग कर रहे होते हैं, या हैंड्स को आइस के पास लेके जा रहे होते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को आइस के पास लेके जा रहे होते हैं। इसके अलावा अनदर वन इज कि वो सोशल क्यूज को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि लोग उनको रिकग्नाइज नहीं होते कि ये सिचुएशन कैसी है, यहाँ पे आपने किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या एटमोसफेयर चल रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द बिहेवियर्स जो कि न्यूरो डाइवर्जेंट जिनको हम कंसिडर करते हैं उसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड just my favorite line as well, that all behaviors are form of communication. आप जो भी behavior देखते हैं in a child, in an individual, in any kind of an adult, at whatever age you see, they are trying to communicate something. कि वो आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो will see ahead as well कि उसमें क्या कुछ reasons हो सकती हैं, कुछ areas हो सकते हैं जो कि वो communicate करने की कोशिश कर रहे हैं। And then there is always a reason for a problem behavior. जिस बिहेवियर को हम प्रॉब्लम बिहेवियर कंसिडर करते हैं, दैट इज अनदर डिस्कशन एज वेल कि क्या वो बिहेवियर जो है वो बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक है या मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर बच्चा हैंड क्लैपिंग कर रहा है, वो हो सकता है अपने आप को रेगुलेट करने के लिए कर रहा हो, दैट इज हिज कंफर्ट प्लेस। बट क्या उस हैंड क्लैपिंग से मैं इफेक्ट हो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे इर्द गिर्द के लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो दैट इज समथिंग वी हैव टू डिफाइन कि अच्छा ये प्रॉब्लम बिहेवियर है। एंड देन जो भी आप बिहेवियर है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, एज आई मेंशन अगेन, और वो रीजन एक से ज्यादा हो सकती है, कि देयर कुड बी मेनी रीजंस। एक बिहेवियर के पीछे डिफरेंट उसके रीजंस हो सकती है, जिसको हम फंक्शंस भी कहते हैं कि बिहेवियर कैन हैव मल्टीपल फंक्शंस। नेक्स्ट इफ यू कैन सी द डायग्राम ओवर हियर, दिस इज अ वेरी गुड एनालॉजी कि एक आइसबर्ग हमें नजर आ रही है एंड वो ऑनली टॉप हम देख पाते हैं, ठीक है। जो एक आइसबर्ग की टिप है, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है या जो कि एक मिस बिहेवियर है, हम सिर्फ उसको देख पा रहे हैं। तो वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट एनालाइज कि पीछे उसके क्या हो रहा है, क्या क्या बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है बच्चे की नींद पूरी नहीं है, बच्चे को भूख लगी हुई है, उसके में भी हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। देन इमोशन आ जाते हैं कि बच्चा हो सकता है इस टाइम पे बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए, उसके लिए इन्वायरमेंट इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है या इन्वायरमेंट इतनी ज्यादा स्टिमुलेटिंग है, या मे बी उस इन्वायरमेंट ने ही उसके बिहेवियर को रीइंफोर्स किया हुआ है, ठीक है। कि उस बिहेवियर, वो जब बिहेवियर अकर होता था, देन इन्वायरमेंट में उसको वो चीज मिल जाती थी और उसकी वजह से उसने लर्न कर लिया कि अगर मैं ये काम करूंगा, मैं ये बिहेवियर शो करूंगा, तो मुझे वो चीज मिल जाएगी जो मुझे चाहिए। तो दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम दैट शोज कि अच्छा एक बिहेवियर के पीछे बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हमें शो हो रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ बिहेवियर। तो कुछ बिहेवियर के फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस आर बेसिकली द रीजन, ओके। और रीजंस हो रहे हैं एस्केप या अवॉइडेंस। बच्चा कोई टास्क नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, उसको उस टास्क से भागना है, उस इन्वायरमेंट से निकलना है, सो दे ट्राई टू फाइंड द एस्केप। अब एस्केप क्यों फाइंड करें, मे बी उनके लिए टास्क हार्ड हो, हमने उसके लेवल से ज्यादा वो टास्क उनको प्रोवाइड किया हो,
या मे बी वो टास्क अभी उनको सॉल्व करना हमने सही तरीके से सिखाया ही नहीं। मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनकी एज से ज्यादा उनको लाके दे दी है और कह रही है कि आप सॉल्व करो, तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू एस्केप। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हो सकता है उनके पास्ट एक्सपीरियंस से उनको उस बिहेवियर को रीइंफोर्स हुआ हो कि हर बारी जब भी उनके सामने कोई काम कोई टास्क रखा जाता था वो इसी तरीके से कोई बिहेवियर शो करते थे, एंड देन दे वुड बी आस्क्ड टू गो आउटसाइड द क्लास, गो आउटसाइड फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट, और वो उन्होंने अपना एक पैटर्न बना लिया कि हमने एस्केप किस तरीके से हासिल करना है। ठीक है, एंड देन अनदर वन इज अटेंशन, कि कुछ बिहेवियर जो होते हैं वो अटेंशन के लिए होते हैं। यहाँ पे हम उनको कहते हैं कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, बट द राइट वर्ड वुड बी कि एक कनेक्शन सीकिंग बिहेवियर है। अगर कोई बिहेवियर हो रहा है जो कि आपको शो कर रहा है कि बच्चे अटेंशन मांग रहे हैं या वो अटेंशन के लिए कोई बिहेवियर एंगेज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर माँ सामने आती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, या फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा लोग प्रेजेंट होते हैं तो बच्चा कोई इस तरह का मिसबिहेवियर कर देता है, सो इट मीन्स कि उसके अटेंशन डेफिसिट है, उसको वो अटेंशन नहीं मिली है यू राइट वे में, तो बच्चा मिसबिहेवियर के थ्रू या किसी और बिहेवियर के थ्रू वो अटेंशन आप डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट वे वुड बी कि बच्चे को अप्रोप्रिएट वे में जब वो मिसबिहेवियर में एंगेज ना कराओ तब उसको अटेंशन प्रोवाइड की जाए, उसके साथ वो कनेक्शन बिल्डिंग की जाए। So there would be multiple interventions. मैं यहाँ पे सारी interventions mention नहीं कर सकती हूँ. So I'm just giving you one or two examples related to the case. And then हमारे पास next one आ जाती है tangible. Tangible is anything that you can touch that has a physical presence. For example, बच्चा कोई market पे जाके candy देख के कोई toys देख के तब रोना शुरू कर देता है, तब एक misbehavior में engage कर देता है, तो वो चीज उसको चाहिए, टेंजिबल फिजिकल आइटम उसको चाहिए, दैट्स व्हाई ही और शी इज एंगेजिंग इन दैट बिहेवियर। मोबाइल यूज करना है, टीवी देखना है, कोई और स्टफ टॉय उसको चाहिए, तो दीज आर ऑल टेंजिबल आइटम्स, और इसकी एक्सेस के लिए वो बच्चे बिहेवियर कोई ना कोई शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी चीज आ जाती है कि नंबर वन मे बी हर बार मार्केट में जब मदर लेके जाती हो तो हर बार उसको वो चीज लेके दे देती हो, हर बार उसको टॉय मिल जाता हो। अब कुछ दिन बाद मदर ने कहा कि ओके मैं टॉय नहीं लेके दूंगी, आप हर बार ही लेते हो, तो देन उन्होंने रोक दिया, देन बच्चे का बिहेवियर इंटेंसिफाई हो गया, तब उसने बिहेवियर शो कर दिया, क्योंकि देखिए आपने खुद एक पैटर्न बिल्ड करना शुरू किया ना, आप हर बार बच्चे की बात मान लेते थे, आप उनको लेके दे देते थे, नाउ दे हैव डेवलप्ड दैट पैटर्न। अनदर थिंग इज कि मे बी आप जब भी बच्चा उस बिहेवियर में एंगेज करता हो आप थोड़ी देर बाद उसको वो चीज दे देते हो, जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया, फॉर एग्जाम्पल मेरी इसी अगर हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, एक अगर बच्चे ने एक मार्केट में टेंट्रम शो कर दिया कि ओके मुझे ये चीज चाहिए, एंड दे स्टार्ट क्राइंग, दे लाइड ऑन द फ्लोर, जमीन पे लेट गए, तो पेरेंट्स या कोई भी इस तरह यूजली क्या करेगा कि ओके सब देख रहे हैं, अभी इस बिहेवियर को खत्म करो, अभी इस बच्चे को उठा लो, अभी इसको रिलैक्स करो, उसको जो चीज चाहिए पकड़ा दो, तो नेक्स्ट टाइम द बिहेवियर माइट इंटेंसिफाई, दे वुड लर्न दैट पैटर्न। एंड अदर लास्ट वन इज सेंसरी, जैसा पहले मेंशन किया कि सेंसरी इश्यूज की वजह से बच्चों के बिहेवियर आ सकते हैं। हम ऑन द टॉप सरफेस देखेंगे कि बच्चा ये कर रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा शाउटिंग कर रहा है, बच्चे ने हिट करना शुरू कर दिया, बच्चे ने हेड बैंगिंग शुरू कर दिया, बच्चा बहुत ज्यादा किसी और बिहेवियर में एंगेज कर दिया है, तो वो चीजें सेंसरी इश्यूज की वजह से भी हो सकती हैं। इन्वायरमेंट उसके लिए स्टिमुलेटिंग, ओवर स्टिमुलेटिंग या अंडर स्टिमुलेटिंग हो सकता है, मे बी उसको वहाँ पे लाइट्स सॉफ्ट लाइट्स चाहिए तो उसको ब्राइट लाइट्स मिल रही है, उसको ब्राइट लाइट्स चाहिए उसको सॉफ्ट लाइट्स मिल रही है। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस जिसको हम डेली बेस पे नोटिस नहीं करते हैं, क्योंकि टिपिकली हमें कुछ इंडिविजुअल्स को सेंसरी सेंसिटिविटीज होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो इतनी मिनिमल होती है कि हम उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एंड देन आई सी द क्वेश्चन ओवर हियर, स्नेहा पूछ रहे हैं हाउ अबाउट द वर्बल स्ट्रिंग, एंड समवन हैज आंसर्ड एज वेल कि ठीक है, पर्सन जब कोई certain words phrases को repeat करता है बार बार, that is a verbal stimming. I'm not sure what your question was, Sumaya. Were you just asking about the verbal stimming क्या होती है? But yes, verbal stimming is a type of a stimming जिसको बच्चे अपने आप को रेगुलेट करने के लिए भी यूज करते हैं। some जो होते हैं वो क्लियर के प्रोसेस में इंगेज करते हैं कि वो कोई फ्रेज या कोई वर्ड्स उसको कैच कर लेते हैं, मे बी फ्रॉम द टीवी और फ्रॉम द ब्लॉग्स और एनीथिंग, और उसको बार बार रिपीट करते हैं। So I've mentioned some of the labelings कि हम किस तरीके से बच्चों को चीजें लेबल करते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा स्टर्बन है, ही इज वेरी स्टर्बन, बहुत जिद्दी है, बात नहीं मानता है, स्कूल से ट्यूशन जाने में बहुत जिद करता है, या एक जगह से जब इसको मैं कहती हूँ जल्दी से तैयार हो जाओ
ये तैयार नहीं होता है या एक एक्टिविटी में इंगेज होता है, इसको कह दो कि जल्दी से आके खाना खा लो, तो ये जल्दी से आके खाना नहीं खाता है, तो बहुत ज़्यादा जिद्दी है ना। तो what might be happening could be different reasons. I'll just mention one over here that he might be having difficulty transitioning between activities. कि उसको transition करने में बहुत difficulty हो रही है। He or she has no idea कि अच्छा मुझे इस एक्टिविटी को कैसे छोड़ना है, उसका इमोशनल इंटेंसिफाई इतना ज़्यादा हो जाता है, उसने वो स्किल अभी उसने लर्न ही नहीं की है, एंड यू आर लेबलिंग द चाइल्ड। एंड देन सेकंड आता है ये बहुत ज़्यादा लेजी है, अपना अपना काम नहीं कर रहा है, बहुत काम लेट से करती है, अपने पेट क्लीन नहीं कर रही है, या बहुत आराम आराम से चीज़ें कर रही है। तो वहां पे आ जाता है कि एग्जेक्टिव फंक्शनिंग का मे बी वहां पे चैलेंज हो उनको, या कोई ना कोई फटीग का सामना। एंड देन सेकंड थर्ड हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है कि ही इज बीइंग रूड। ओके, कम्युनिकेशन स्टाइल्स डिफरेंट हो सकते हैं, कभी हो सकते हैं कि सोशल क्यूज दूसरा बंदा मिस कर दे, या उसको वो आपकी बात को लिटरल ले ले। जैसे हम देखें कि डिफरेंट कंडीशंस में सोशल एंड कम्युनिकेशन जहाँ पे डेफिसिट होता है, जहाँ पे वहाँ पे चीजें क्या होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप उनसे कोई बात कर रहे हो, दे माइट टेक यू इन लिटरल सेंस, वो सार्कज्म को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, सो इट्स नॉट कि वो फिर कोई रॉन्ग हो गए हैं या वहाँ पे कोई उनके साथ प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट अ डिफरेंट स्टाइल, वो उस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, वो वहाँ पे there is an echo in the voice making it difficult to understand. Okay, let me close my mic and join again. Okay, please tell me, is there an echo right now? Can you hear me well? Is voice clear right now? Okay, that's good then. Okay, I see another question over here that what is the difference between verbal stimming and echolalia? Okay, so verbal stimming और echolalia में basically वहाँ पे repetitive vocalization ही हो रही होती है, vocally जब कोई ना कोई चीज repeat कर रहा होता है, but echolalia जो होते हैं वो basically बच्चा repeat कर रहा होता है, for example कोई भी words, कोई भी phrases जो किसी और बंदे ने बोले हैं, for example मामा ने कहा let's go, तो या थेरेपिस्ट ने कहा लेट्स गो, तो बच्चा कंटिन्यूसली बोल रहा है लेट्स गो, या उसने किसी कार्टून में देखा कि हेलो मामा, बाय बाय मामा, तो वो कंटिन्यूसली हर पर्सपेक्टिव में वो हर जगह पे वही बोल रहा है बार बार। उनको मे बी उसके जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको वो फंक्शनली उसको यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको अभी बाय बाय मामा वाली सिचुएशन नहीं है, आप बाय बाय नहीं कर रहे हो, बट वो उस चीज को बोल रहे हैं बार बार। इक्वलेलिया इमीडिएट भी हो सकता है, डिलेड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी कोई चीज बोली है एंड देन अदर पर्सन इमीडिएटली उसको कॉपी कर लिया, ये बच्चे ने उसको फौरी तौर पे कॉपी कर लिया या कुछ सेंटेंसेस के बाद कॉपी किया। लेकिन वर्बल स्टिमिंग में एक सिंपल हमिंग भी आ सकती है, कुछ स्पेसिफिक साउंड्स भी हो सकती हैं, बट वर्बल स्टिमिंग का जो मकसद होगा ना दैट इज डिफरेंट, दैट इज मोस्टली जो फंक्शन होता है वो सेल्फ रेगुलेशन होता है या वो सेंसरी स्टिमुलेशन होती है, तो करके या कोई भी साउंड इको करके या हाय 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 हेलो 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 आराम आराम से टोन में किसी एक सर्टेन टोन को पकड़ के वो अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। होप इट्स क्लियर नाउ। लेट मी कंटिन्यू माय स्लाइड्स। So we were mentioning, okay, root है, so there could be different communication styles, different social cues, understanding the differences हो सकते हैं, and then other example is that the person is too sensitive, he or she is too sensitive. So then sensitivity we have, I mentioned again and again about the sensory differences. So there must be a sensory processing difference आ सकता है वहाँ पे कि they have a difficulty adjusting to that particular sensory auditory sense, or maybe tactile sense, or maybe taste sense, anything of that. Okay, let me go towards the next slide. So now we see that, okay, we now understand the concept of the neurodiverse children. Okay, maybe not understand, but maybe we have recognized, okay, that not every individual, not every child is same. Not every child functions or works same. But what we are doing is we are providing with them with the same environment. हम एक सेम environment अपने सेम टीचिंग स्टाइल में या सेम कम्युनिकेशन स्टाइल में हम चाह रहे हैं कि अगला बंदा हमें एडजस्ट कर दे।
ठीक है, वी आर नॉट, हम चाह रहे हैं कि बाकी सब हमारे पैटर्न पे करें। तो फिर न्यूरो डाइवर्सिटी की इंक्लूजन कहाँ पे आएगी? न्यूरो डाइवर्सिटी, और इसको हम ये भी कहते हैं कि न्यूरो एक इंक्लूसिव एनवायरमेंट, इंक्लूसिव सेटअप कैसे बनेगा कि जब हम अपने वेज को थोड़ा बहुत आगे करेंगे, चेंज करेंगे, थोड़ा सा इंकॉर्पोरेट करेंगे स्किल्स को, दिस कुड हैपन इन आवर होम्स, इन आवर एनवायरमेंट, इन आवर स्कूल्स, एवरीवेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल सिंपल मेंशन है अबाउट द डिसलेक्सिया, लाइक द पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद द रीडिंग एंड राइटिंग, और मैं उसको फिर भी एक एज अ टीचर उसको बोर्ड की चीज समझा के मैं चाह रही हूँ क्योंकि बच्चा खुद ही ग्रास्प कर लेगा, नो, he might need he might need to learn through tactile। हो सकता है उसको मुझे एक सैंड पे उसको लेटर्स लिखवाने पड़े, हो सकता है मुझे उसको किसी और तरीके से लेटर्स लिखवाने पड़े, हो सकता है मुझे कोई और मटेरियल यूज करना पड़े, मे बी मुझे उसको वीडियोस के थ्रू समझाना पड़े, मे बी मुझे उसको रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स के साथ चीजों को मैच करवा के समझाना पड़े। तो दैट इज समथिंग हाउ वी क्रिएट द इंक्लूसिव एनवायरमेंट। एंड वहाँ पे चैलेंजेस बहुत आते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इन आर schools as well, in our environment as well, कि हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमने इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही नहीं की हैं कि वहाँ पे हम डिफरेंट एबिलिटीज के साथ जो बच्चे हैं, डिफरेंट स्किल्स के साथ जो बच्चे इंडिविजुअल हैं, उनको हम इनकॉर्पोरेट कर सकें। आई माइसेल्फ इज वर्किंग एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट, और यहाँ पे जब हमारे बच्चे हम देखते हैं कि अच्छा दे आर एट दिस सर्टेन लेवल, उनके एकेडमिक स्किल्स इतनी डेवलप हो गई हैं, उनके बिहेवियर्स मैनेजेबल हैं, नाउ दे आर रेडी टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स स्कूल, बट अभी भी हम वो रिजेक्शन फेस करते हैं कि अच्छा नहीं, बच्चा आराम से नहीं बैठ रहा है, बच्चा ये चीज कर रहा है, वो उसने एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा देख रहा है, सो व्हाट। ठीक है, until unless the child is not harming himself, herself or the other person, everything is okay। आप इंक्लूसिविटी तभी क्रिएट करोगे अगर वो हार्म भी कर रहा है या किसी और को भी हार्म कर रहा है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट एज वेल। मे बी उसको वो स्टिमुलेट इतना ज्यादा हो गया, मे बी उसने अभी वो स्किल उसको कैसे कंट्रोल करना है वो सीखी ही नहीं है। And then there are different categories as well. We have in autism level 1, level 2 and level 3, there are support levels different as well. So I understand not every place, not every school or every institution can promote the inclusion, but as an environment or as a society, maybe we can work, not maybe, we should definitely work towards the inclusion. At least हम उस चीज को recognize करें, understand करें, उसको एक judgment की eyes से ना देखें। And here I will mention, let me just zoom into the screen if you can see, if you cannot see the screen as well, I will explain it to you guys। कि बेसिकली हमारे पास दो पर्सपेक्टिव आ जाते हैं कि बच्चा अभी कर नहीं पा रहा है, इंडिविजुअल अभी कर नहीं पा रहा है, ठीक है, या अभी वो करना नहीं चाह रहा है। ठीक है, करना नहीं चाह रहा का पर्सपेक्टिव क्या होगा? अगर मैं कहूँगी कि नहीं बच्चा करना ही नहीं चाह रहा है जी, वो तो जिद्दी है, वो रूड है, वो करता ही नहीं है कोई काम, तो वो क्या, वो लर्निंग एक्टिविटी में हम कहेंगे उसको डिसइंटरेस्ट है या हेजिटेशन है। और कांट क्रिएट में आएगा कि हो सकता है उसकी सेंसिटिव इश्यूज हैं, जो उसको वो टास्क समझ ही नहीं आया जो मैंने उसको प्रेजेंट किया है, या उसके लिए इंस्ट्रक्शंस इतनी ज्यादा हाई लेवल थी, या उसके एज से ज्यादा थी, या उसके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से ज्यादा थी, तो उसने अंडरस्टैंड ही नहीं की है। So that is the can't yet perspective, which is more empathetic, more understanding, okay, जो आपको different perspectives को देखने का, different areas को देखने का help करता है। And conditional response वही हो जाएगा कि हम frustrate हो जाएंगे कि बच्चे को मैं लिखवाना चाह रही हूँ, रीडिंग करवा रही हूँ, या उसको मैं बार बार समझा रही हूँ आपने शाउट नहीं करना है, तो वो सुन ही नहीं रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी, मैं बच्चे को लेबल कर दूंगी। एंड द कांट क्रिएट पर्सपेक्टिव क्या होगा कि मैं थोड़ा सा पेशेंट होंगी, थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड करूंगी, उसकी लिमिटेशंस को मैं रिकॉग्नाइज करूंगी, अंडरस्टैंड करूंगी, एंड देन उसके ऊपर मैं काम करूंगी। जो जैसी लिमिटेशन है मैं उसको डील करूंगी, उसको मैं जब वो रिलैक्स एनवायरमेंट में होगा तब मैं उसको डिफरेंट वेज से, डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू समझाऊंगी क्योंकि यू हैव टू डू इट लाइक दिस। मैं अपने इंस्ट्रक्शंस को इजी वे में मोर स्टेप्स के साथ समझाऊंगी, उसको और इजी वे में उसको स्टेप्स को ब्रेक डाउन कर दूंगी। ठीक है, उसको ट्रेनिंग के प्रोसेस में हम एक डिफिकल्ट टास्क को ब्रेक डाउन करके उसको सिखाएंगे। एंड देन अप्रोच क्या होगी कि मैं अगर वांट पर जो पर्सपेक्टिव है हमारा वो होगा, तो उसमें मैं बच्चे को जबरदस्ती पुश करूंगी, फोर्स करूंगी, डांटूंगी, चीखूंगी, चलाऊंगी, उसके ऊपर पनिशमेंट्स इंप्लीमेंट कर दूंगी। सो दैट वुड बी द वांट पर्सपेक्टिव। और कांट क्रिएट का क्या है कि मैं अल्टरनेट मॉडल्स ढूंढूंगी, अल्टरनेट मेथड्स ढूंढूंगी, उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगी, मैं उसको अंडरस्टैंड करूंगी कि हाँ उसके लिए भी डिफिकल्ट है। ओके, एंड देन हम फिर क्या करते हैं कि नॉर्मली ट्रेडिशनली हम जो अपने ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स हैं, लर्निंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अंदर हम इनकॉर्पोरेट उसको बच्चे को फोर्स करने की कोशिश करते हैं।
इसके अलावा अगर हम दूसरा पर्सपेक्टिव देखें तो वहाँ पे मे बी मैं उसके लिए विजुअल एड्स लेके आऊँ, उसके लिए वीडियोस लेके आऊँ, हैंड ऑन एक्टिविटीज लेके आऊँ, टास्क को जैसा मैंने पहले कहा डूएबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दूँ, जो उसका अकोमोडेशन रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करूँ। एंड यू वुड सी दिस वुड बी टाइम टेकिंग, ओके, दिस वुड नॉट बी कि आपने एक बार किया, 2 बार किया, नो, इट वुड टेक टाइम। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता लर्न करेगा, इंडिविजुअल आहिस्ता आहिस्ता लर्न करेगा, और मे बी टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेवल्स पे डिपेंड करेगा, करंट उसकी लिमिटेशंस पे डिपेंड करेगा, करंट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंटल के ऊपर डिपेंड करेगा, बट ओवर द टाइम एटलीस्ट द चाइल्ड वुड फील अंडरस्टूड। उसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि जो पर्सन है वो मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, दे विल फील मोर एम्पावर्ड, उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो डिसएंगेजमेंट है वो रिड्यूस होगी, उनकी जो रेजिलेंस है, उनकी जो एक पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस है वो एक पॉजिटिव होगा, वो डेवलप करेगा, वो इंक्रीज करेगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये हमारे पिछले पर्सपेक्टिव को ही लेके चलता है कि व्हाट इज द स्किल एंड व्हाट इज द विल। जैसा मैंने कहा कि बच्चे में अभी स्किल्स ही नहीं डेवलप हुई है, बच्चे को भी पता ही नहीं है ये टास्क कैसे परफॉर्म करना है। मैंने उसको उसकी एज से पहले वो टास्क प्रोवाइड कर दिया है, मे बी उसके इंटेलेक्चुअल डिफरेंस की वजह से मैंने उसको वो टास्क समझ नहीं आ रहा है, तो इतनी इसकी स्किल डेफिसिट है, बच्चा अभी काम नहीं कर सकता, वो इंडिविजुअल ने अभी काम करना सीखा ही नहीं। एंड देन सेकेंड आ सकता है विल नहीं है बच्चे की, परफॉर्मेंस इश्यू है कि काम तो करना आता है बट अभी नहीं करना चाह रहा है, या बार बार रेजिस्टेंस शो करता है, या बार बार हेजिटेंस शो करता है ड्यू टू XYZ रीजन, किसी भी रीजन की वजह से। सो ऑलवेज ट्राई टू सी द बिहेवियर इन दैट सेंस कि ओके कांट, कि बच्चा कर नहीं रहा है, ये बच्चा कर नहीं पा रहा है, दोनों सेंस में आपकी इंटरवेंशन डिफरेंट हो जाएगी। बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है आप उसको स्किल सिखाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको उसके आप कम्युनिकेशन स्टाइल में डिफरेंसेस हैं या डिफरेंसेस की ज्यादा डेफिसिट है, जैसा मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी कि फॉर एग्जाम्पल 6 years का बच्चा है जो कि अभी वोकली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, इट कुड बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, ठीक है। इट कुड बी ड्यू टू न्यूरो डेवलपमेंटल इशू नॉन एज ऑटिज्म एज वेल, इट कुड बी ड्यू टू स्पीच एंड लैंग्वेज डिले एज वेल, ठीक है। तो उसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं, आइडेंटिफाई दैट, उस चीज को प्रॉपर असेस करना है, रिकॉग्नाइज करें, एंड देन उसके बाद आप देखेंगे ओके नाउ अब इंटरवेंशन क्या होगी। अगर कम्युनिकेशन नहीं है, स्पीच थेरेपी है, देयर आर डिफरेंट थेरेपीज फॉर दैट। अब उसमें भी डिफरेंट इंटरवेंशंस आ जाते हैं कि बच्चा अगर बोल के बात नहीं कर रहा है तो बात तो उसने बतानी है ना, उसकी भी तो थॉट्स हैं, उसकी भी तो नीड्स हैं, उसकी भी तो वांट्स हैं। ऑफन हम देखते हैं फील्ड में कि बिहेवियर्स जो आ रहे होते हैं डिस्ट्रक्टिव या मैलअडैप्टिव, जिसको हम लेबल कर देते हैं, प्रॉब्लम बिहेवियर्स लेबल कर देते हैं, वो इस वजह से आ रहे होते हैं कि बच्चे को कोई फ्रस्ट्रेशन भी है, या बच्चे को कोई चीज चाहिए भी है, या बच्चे ने अभी काम नहीं करना है, अगर वो बोल नहीं पा रहे तो वो आपको बता ही नहीं पा रहे, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, उनके भी राइटिंग भी डेवलप नहीं हुई कि आप वो आपको लिख के बता दें, अगर मैं एक सर्टेन एज की बात करूँ, तो फिर उनको हमें अल्टरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देने पड़ते हैं, वेदर दे आर थ्रू द साइन लैंग्वेज, कि आप उनको साइन लैंग्वेज सिखा दें, अगर वो साइन लैंग्वेज भी नहीं सीख पा रहे हैं या उसमें भी कोई डिफिकल्टी है, कोई लिमिटेशन है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस ये वेरी करता है, देन आप उनके साथ पिक्चर्स के साथ काम करते हैं कि आप उनको फॉर एग्जाम्पल पानी चाहिए तो आप उनको पानी की पिक्चर के साथ सिखाते हैं कि ओके एटलीस्ट वो अपनी नीड को कम्युनिकेट कर सकें। अगर उनको टास्क के दौरान ब्रेक भी चाहिए, ठीक है, उन्होंने कोई स्टॉप लेना है, कोई ब्रेक चाहिए, या वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एंग्री फील कर रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है, सो दे कैन गिव यू दैट कार्ड, वो किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट करें। इसी तरह वी हैव डिफरेंट AAC डिवाइसेस होती हैं जिनको हम अल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं, कि जैसा हमारे मोबाइल की तरह या पिक्चर्स की तरह डिफरेंट इसके अंदर आइकन्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, कुछ होते हैं वो वॉइस रिलेटिंग डिवाइसेस होती हैं कि वहाँ पे आप कोई भी वर्ड प्रेस कर दो, यू गेट द वॉइस एंड पिक्चर शोन एज वेल, सो द अदर पर्सन इज बेसिकली एबल टू अंडरस्टैंड कि बच्चा इंडिविजुअल क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर और डिफरेंसेस आ जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये तो पर्सपेक्टिव आ गया कि स्किल का यहाँ पे डेफिसिट है, तो हमने फोकस किया कि बच्चे को हमने स्किल सिखानी है, बच्चे को हमने एम्पावर करना है बाय गिविंग देम राइट टूल्स, राइट वेज, एंड देन मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, इट इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ बिहेवियर जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, और इसमें मैं बहुत 1 या 2 इंटरवेंशन डिस्कस कर रही हूँ। इट इज अ वेरी लार्ज एरिया जहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर्स हैं और हर बिहेवियर डिफरेंट दिखता है। No two children with autism would look like same.
no two children with ADHD would look like same. Over the surface आपको लगे कि okay ठीक है ये behavior common है, ये तो इधर भी behavior common है, but वो behavior जिस environment में exist कर रहा है या उसके पीछे जो antecedents जिसको हम कहते हैं, या जो triggering events हैं, या उसके पीछे की जो history है, that would be unique. That would be different in each child or each individual scenario. ठीक है. एंड सिमिलरली जो उस बिहेवियर के बाद हो रहा होता है, जिस तरीके से उस बच्चे को रिस्पॉन्स किया जा रहा होता है, जिस तरीके से बच्चे को एनवायरनमेंट की तरफ से रीइंफोर्स वो बिहेवियर हो रहा होता है या पनिश बिहेवियर वो हो रहा होता है, और पनिश मीन्स कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी अप्लाई की जा रही थी उसका बिहेवियर जो रिड्यूस कर रहा हो. ठीक है. इट्स नॉट लिटरल पनिशमेंट, बट इट्स अ कॉन्सेप्ट कि जिसके थ्रू कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा एक्शन जिसके रिजल्ट क्या हुआ कि बिहेवियर जो था वो रिड्यूस कर गया. सो दीज आर फैक्टर्स जिसको हम ABCs ऑफ बिहेवियर्स भी कहते हैं, कि एंटीसीडेंट, देन बिहेवियर, देन द कंसिक्वेंस. सो हम बिहेवियर को इस तरीके से एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. एंड देन सिमिलर इज द केस विद द वांट टू डू पर्सपेक्टिव या विल, जो परफॉर्मेंस इशू आ जाता है कि बच्चे को स्किल तो आती है, उसको पता है कि उसने बोल के बताना है, उसने कैसे बोल के बताना है, वो फिर भी नहीं कर रहा है. तो देयर आर आल्सो रीजंस कि मे बी उसकी इनफ प्रैक्टिस ही नहीं हुई है. प्रैक्टिस ये नहीं है कि बच्चे को गुस्सा आ गया है, वो बहुत ज्यादा हाइपर हो गया है, या अब उसने रोना शुरू कर दिया और आप उसके सामने जाके को टेक डीप ब्रेथ्स बेटा, थोड़ा लंबी लंबी सांस ले लो. नो, द बिहेवियर इज एस्केलेटेड नाउ. या आप उसको समझाना शुरू कर दें कि आपने ऐसे नहीं करना था, आपने बदतमीजी नहीं करनी थी, ऐसी चीजें उठाते नहीं थे. In that state, the child is not listening to you. The individual is not listening to you. They have gone to the stage where जहाँ पे उनके intellectually वो चीजें उस तरीके से comprehend नहीं कर पा रहे हैं. अब वो emotional state में है, अब वो listening state में नहीं है इस time पे. So that is not the right way or the right time to teach them. ये teaching का जितना भी perspective होता है, जितना भी area होता है, that is when they are in the calm state. कि जब वो काम स्टेट में हो तब आप उनके साथ प्रैक्टिस करें. ठीक है. तब आप उनके साथ वो चीज समझाएं, उनके साथ बात करें, उनको डिफरेंट तरीके से कनेक्शन बिल्ड करें एंड देन उस चीज को समझाएं. सो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स जो एक बिहेवियर को सिखाने के लिए होते हैं, एक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए होते हैं. बट इन द एंड हमारा थोड़ी सी मेरी डिस्कशन इंटरवेंशन की तरफ चली गई है. बट गोइंग बैक टू द टॉपिक, गो कि बेसिक यहाँ पे अवेयरनेस का मकसद ही था. सम ऑफ यू माइट बी अवेयर कि न्यूरो डाइवर्जेंट क्या होते हैं, सम ऑफ यू मे नॉट बी अवेयर न्यूरो डाइवर्जेंट क्या होते हैं, सम मे हैव सीन सम बिहेवियर्स अराउंड यू. ओके. सो देयर इज अ डिफरेंस कि हमें पता है और हम उस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और हम उसको किस आइज से देख रहे हैं. हम मे भी कोई ऐसी बात अपने मुंह से ना निकाल दें कि ओहो बच्चा क्यों रो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, इसको इतना शोर किया हुआ है. ठीक है. हम अक्सर बहुत सारे बिहेवियर देखते हैं, एंड आई हैव सीन सच अटरेंस के लोग कह देते हैं, एंड इट कम्स फ्रॉम द प्लेस वेयर दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. सो वहां पे भी तो देखिए ना, एक स्किल डेफिसिट है. अगर हमें पता नहीं है तो हम बस एक लेबल कर रहे हैं, हम उस चीज को कुछ भी कह रहे हैं, मे बी बैड वर्ड्स यूज कर रहे हैं, या कुछ भी इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं विच इज नॉट अप्रोप्रिएट. So the purpose is to now reform ourselves, at least in whatever places we are. हम जिस भी role पे हैं, even if we are working, even if we are not working, even if we are in the field of psychology or if we are not in the field of psychology, even as a human being, as a society, जब हम इन चीजों को अपने एरिया देखें तो उस चीज को recognize करें and give it empathetic and understanding perspective. Okay, that there could be XY reasons, that's why it's happening. ताकि जो already for example एक family, mother, parents, sister, जो भी adult already इतना stress out है कि वो already इतना feel करें कि बच्चा behavior show करे या individual इस तरह का behavior show करे, हम उनके लिए कोई ना कोई safe place provide करें कि वो बहुत ज्यादा हम उनको judging eyes से ना देखें, क्योंकि उनको already बहुत सारी hurdles का सामना तो करना पड़ रहा है. ठीक है. तो एटलीस्ट हम अपने पार्ट से वो चीज उनके लिए मजीद डिफिकल्ट ना बनाए. तो दिस वाज द रैप अप ऑफ माय स्लाइड्स. मैंने बहुत ज्यादा लिमिटेड स्लाइड्स बनाई थी और बहुत ज्यादा लिमिटेड कंटेंट रखा था. सो आई एम एबल टू हैव द डिस्कशन विद यू गाइस कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, you can open your mic and discuss with it, or if you want to engage with the questions, or if you have any query that you would like me to address, we can have the discussion. You can mention in the chat as well. Assalamualaikum.
वालेकुम अस्सलाम। मैम सॉरी, आपकी आवाज़ जब आप स्टबन बच्चों के बारे में बता रही थी तो क्लियर नहीं थी, सही से समझ नहीं आया। काइंडली वो अगेन एक्सप्लेन कर दें कि जब एक बच्चा स्टबन हो, वो किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जिद कर रहा हो, तो तब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि मैं किस पर्सपेक्टिव के टाइम पे बात कर रही थी, बट जनरली अगर हम देखें ना, अब हमने एक बिहेवियर देख लिया कि वो स्टबर्ननेस है। ठीक है, अब आपको पता चला कि वो स्टबर्न है। अब स्टबर्न की मेरी डेफिनेशन कोई और होगी, आपकी डेफिनेशन कोई और होगी, किसी और बंदे की डेफिनेशन कोई और होगी। सो प्रोफेशनली हम उस चीज को पहले डिफाइन करते हैं कि ओके मेरी स्टबर्ननेस कैसे दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर बच्चे में स्टबर्ननेस ये हो कि जब मैं उसको होमवर्क करवाने बैठती हूँ तो वो होमवर्क नहीं करता है, जिद करता है। एक और बच्चे की स्टबर्ननेस ये हो कि मे बी वो एक सर्टेन खाना नहीं खाना पसंद करता है। ठीक है, so that could be labeled, both the behaviors could be labeled as कि stubbornness आ रही है, जिद्दीपना आ रहा है। Then again, जैसे मैंने मेंशन किया, see the functions of the behavior, बच्चा क्यों stubbornness शो कर रहा है। ठीक है, मे बी उसने कोई चीज के लिए जिद कर रहा है, तब वो stubborn शो कर रहा है कि वो बेचारे कि नहीं पहले मोबाइल देंगी तो मैं खाना खाने बैठूंगा। उसे अपनी कंडीशंस रखी हैं, उसको कोई टेंजिबल आइटम चाहिए। या देन अगेन उसके मे बी जो उसका फूड टेक्सचर है वहां पे उसको डिफिकल्टी है, सेंसरी इश्यूज आ गई यहाँ पे। देन अटेंशन के लिए करता है कि उसके और कनेक्शन, उसको किसी और काम से सारा दिन अटेंशन ही नहीं मिलती है, लेकिन जब वो इस तरह के काम में एंगेज करता है, जब इस तरह का बिहेवियर शो करता है, तो सब उसकी तरफ देखते हैं। बेशक नेगेटिव लाइफ में टेंशन मिल रही है, नेगेटिव बिहेवियर पे टेंशन मिल रही है और नेगेटिव टेंशन मिल रही है, मेरी उसको स्कोल्डिंग हो रही है, उसके साथ बहुत ज्यादा बहस हो रही है, मदर की, फादर की, या किसी भी इंडिविजुअल की, बट ही और शी इज गेटिंग द अटेंशन। सो यहाँ पे फिर वही बात है कि हमें देखने की जरूरत है कि उसके पीछे फंक्शन क्या है। एंड देन एनवायरमेंट तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्टिमुलेटिंग तो नहीं है, या मे बी उसने वो स्किल अभी लर्न ही नहीं की है। तो देन फिर हम उसके इंटरवेंशन ला सकते हैं कि अगर उसने स्किल लर्न नहीं की है तो हम उसको सिखा सकते हैं कि आपने इस टाइम पे, अगर आपको ब्रेक भी चाहिए ना कि आपने अभी खाना नहीं खाना, तो आप कैसे मेंशन करोगे, या आपने ये टेक्सचर नहीं खाना, ये वाला खाना नहीं खाना, तो इंस्टेड ऑफ शाउटिंग आप ये इस तरीके से कम्युनिकेट करोगे। या मे बी वी कैन हैव सम विजुअल स्केड्यूल्स फॉर देम कि हम लिख के रख लें कि आज सुबह ही वहां पे मेंशन कर दें कि आज खाने में ये बना है, तो द चाइल्ड इज एबल टू ट्रांजिशन बेटर, उसको पता हो कि आज यही बना है, वो अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर ले। Okay, so there could be the multiple interventions for one particular behavior after analyzing that behavior and after analyzing the environment in which the behavior is occurring. थैंक यू सो मच मैम। मेरे बच्चों के साथ ये मसला होता है कि जैसे खाने का टाइम है तो मेरे बच्चे तब कहते हैं कि हमें नूडल्स खाने हैं। तो मैंने उनका एक टाइम फिक्स किया हुआ है कि आपने जो है शाम के टाइम जो हमारा टी टाइम होता है उस टाइम आपने नूडल्स खाने हैं, जब लंच करेंगे तो हम सब मिलके लंच करेंगे। तो वो उसमें मैं जिस तरह भी समझा लूँ तो अक्सर फिर वो वही इसमें स्टबनेस आ जाती है कि नहीं, पहले हम नूडल्स खाएंगे फिर हम खाना खाएंगे। तो तब बड़ा मतलब मदर पैनिक कर जाती है। एक यानी कि मदर ने हर तरह से कोशिश की बट स्टिल बच्चा स्टबन है, स्टिल वो यही कर रहा है जिद के नहीं मैंने तो पहले नूडल्स ही खाने हैं। तो तब फिर मदर को थोड़ा वो एग्रेशन भी आ जाती है, पैनिक हो जाते हैं सम टाइम। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, मेरा बेसिकली ये क्वेश्चन था। ठीक है, मैं आपको मे बी डायरेक्ट आंसर ना दे सकूँ बिकॉज मुझे उसके पिछले हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन अगर जनरली मेंशन करूँ तो आई एम नॉट आइडिया कि वो कितनी देर से मे बी बिहेवियर रीइंफोर्स होता हुआ आ रहा है। कि अगर बच्चों ने शुरू में जिद करना शुरू की तो आपने या किसी और ने भी एक दो बार कहा कि ओके चलो दे देते हैं, बच्चे ही तो हैं, जिद कर रहे हैं, एक बार दे दिया, दो बार दे दिया, देन इट बिकम एन हैबिट। ओवर द टाइम वो एक हैबिट बन गई। एंड देन फिर ये भी होता है कि अच्छा अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो दे एक अल्टरनेट हथियार क्या होता है कि हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, जो खाना बना हुआ वो भी नहीं खाएंगे। तो फिर मदर्स के पेरेंट्स का क्या होता है यूजली, या किसी का भी, कि ओके एटलीस्ट कुछ तो खा रहा है, ये खा के खाना खा ले, चलो दे देते हैं। सो ओवर द टाइम आप देखें कि वो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या जो कंसिक्वेंस हम बच्चों को दे रहे हैं उसकी वजह से बच्चों का वो बिहेवियर रीइंफोर्स होता जा रहा है। ठीक है, बच्चे कहते हैं कितनी देर भूख लगेगी, भूख से हमारा बच्चा बैठा रहेगा, हम नहीं खाना देंगे। अगर हम खाना नहीं देंगे फॉर एग्जाम्पल वो भूखा रह जाएगा, तो हम भूखा कैसे छोड़ सकते हैं। नहीं, जब बच्चे को भूख लगेगी और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, दे वुड कम एंड ईट दैट। जी मरियम, आपने क्वेश्चन किया था ये? Assalamu alaikum, ma'am. जी वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, I have a question. ओके, पिछला क्वेश्चन आपने किया था? No, ma'am. अच्छा, ओके मैम मैंने किया था इरम।
Okay, okay. So I'll just Thank you so answer much. that. No worries, no worries. Welcome. Okay. So ma'am, there is this child जिसको communication भी बहुत अच्छी है, like he can speak well, he can communicate well, और उसको understanding भी है relationships की. मतलब अब मेरा एक cousin है, मामू का बेटा है, तो उसको पता है कि family में कौन उसका क्या लगता है, वो communicate भी करता है, वो understand भी करता है, बट वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकता. मतलब वो अगर आप उससे पढ़ाने के लिए बैठे तो ही कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, ही विल नॉट पे अटेंशन. तो उसकी मामा को लगता है कि शायद ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है या ये पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसको बाकी सब इवेंट्स के, फॉर एग्जांपल अगर कोई फैमिली में इवेंट हुआ है तो ही अंडरस्टैंड्स कि अच्छा ये सब कुछ हुआ है, वो उसको कम्युनिकेट भी कर लेता है. बट व्हेन इट कम्स टू स्टडीज तो ही कैन नॉट पे अटेंशन, ही कैन नॉट इवन राइट प्रॉपरली, वो लिख भी नहीं सकता सही से. तो what a problem of the child it can be. Okay, so number one would be getting the assessment from the professional. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एज, अगर है अब जो भी सर्टेन एज है उसके मुताबिक अगर बच्चा पेंसिल ग्रिप नहीं है या उसको लर्निंग इश्यूज आ रहे हैं या जो उसके पीयर्स वो कॉन्सेप्ट इजीली ग्रास्प कर पा रहे हैं, यू सी द डिफरेंस कि वो बच्चा सेम एज में वो चीज ग्रास्प नहीं कर पा रहा है या उसको वो चीज स्पेसिफिक पढ़ाई रिलेटेड समझ नहीं आ रही है, मे बी इट कुड बी रिलेटेड टू द वर्ड समझ नहीं आ रही है, मे बी मैथ्स में ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है. So identify those areas, and the number one guidance would be to go and get the assessment from the professional. Then you would know कि वो आपको डिटेल हिस्ट्री भी लेंगे, बच्चे को assess भी करेंगे, and then maybe there might not be कि okay there is XYZ issue. It's not must कि कोई issue ही हो. It could be just कि maybe वो different तरीके से understand करते हो. Okay, they may be more of the visual learner, they may be more of an auditory learner. मे बी उनको जो इंस्ट्रक्शन देने का तरीका है, जो उनको समझाने का तरीका है, वो उसमें थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़े या डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज या डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिस करवानी पड़े, देन उसके बाद दे आर एबल टू फोकस बेटर. ठीक है, जैसा आपने मेंशन किया कि वो उनका बिहेवियर स्ट्रगल यहाँ पे नहीं आ रहा, तो देयर मे बी अ स्किल डेफिसिट यहाँ पे कि वो स्किल्स जो उनकी प्राइमरी स्किल्स हैं वही दे आर नॉट प्रेजेंट. और हम उनको डिफरेंट लेवल सिखाने की कोशिश करें. एंड देन वंस अगेन मैं बहुत जेन्युइन सा आंसर दे रही हूँ बिकॉज ड्यूरिंग दिस मीटिंग और इन एनी इनफॉर्मल सेटिंग हम क्लियर नहीं होते हैं कि हिस्ट्री क्या है, बिहेवियर्स कैसा दिखता है, डिफरेंट डिफिकल्टीज किस तरीके से आ रही है, अभी करंट इंस्ट्रक्शन लेवल क्या है. ठीक है, एंड देन बच्चा उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है और रिस्पॉन्ड करने में भी उसकी क्या क्या डेफिसिट्स शो हो रहे हैं. I hope I'm able to answer your question. Thank you so much for your answer. You're welcome, Miriam. All right, then I think we are done with the session. I see a question over here. All right, let's take the questions first. Okay. I see that in case for the speech delay, we use sign language. We wanted to increase the dependence on sign language, and child might not initiate his speech. Instead, he start relying on card. Okay, so Sana, there are different researches over here that exist in the literature as well. कि वो ये हमने explore किया है कि AAC devices यहाँ बच्चों को साइन लैंग्वेज या जब हम टेक्स्ट पे डाल देते हैं तो क्या उनकी स्पीच की अटरेंस पर फर्क पड़ जाता है या नहीं पड़ जाता. So most of the studies were in negative. Few of studies did show that, but then reason ये आ सकती है कि देखिए एक बच्चा 8 years का हो गया, 9 years का हो गया, या इससे बड़ी एज का हो रहा है, टीनेजर में जा रहा है, वहाँ पे फिर आप नोटिस करेंगे कि अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी बात को नहीं बता पा रहे हैं, तो वहाँ पे उनके बिहेवियर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे. वहाँ पे फिर फ्रस्ट्रेशन लेवल इंक्रीज कर जाएगा विद हार्मोनल चेंजेस एंड विद एवरी चेंजेस. अगर टीनेजर नहीं भी हैं तो अगर छोटे बच्चे भी हैं तो उनकी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. अगर 3 साल का बच्चा भी 4 साल का बच्चा है, वो उसको पानी चाहिए वो तब भी रो रहा है, उसको दूध चाहिए वो तब भी रो रहा है, उसको कोई चीज खानी है वो तब भी रो रहा है, उसने बाहर जाना है वो तब भी रो रहा है या तब भी चीख रहा है. तो समझ नहीं आएगी कि वो कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बिल्ट अप हो जाएगा. सो नो, देयर इज नॉट अ वेरी प्रूवन इफेक्ट, उसकी वजह से उनकी स्पीच भी डेवलप नहीं होगी. साइड बाय साइड क्या होता है, वी गिव देम अल्टरनेट वेज, बट उसकी पूरी प्रॉम्प्टिंग जारी होती है कि बच्चे के और मॉडल एक्सरसाइज हो रही होती हैं, स्पीच थेरेपी हो रही होती है और उसकी स्पीच पे साइड बाय साइड काम हो रहा होता है कि स्पीच उसकी आ जाए, जो भी एरिया टारगेट किए जा रहे होते हैं.
बट देन हम उसको एक ऑल्टरनेट मीन्स तो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द बेसिक राइट दैट चाइल्ड और इंडिविजुअल हैज कि उसको एक ऑल्टरनेट वे प्रोवाइड किया जाए। एंड देन उसके बाद आ जाती है मैम हाउ टू ओवरकम द ऑब्सेशंस ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड। तो देन वंस अगेन हम थेरेपी में भी जनरली भी जब हम किसी बिहेवियर को इंक्रीज या डिक्रीज करने की बात कर रहे होते हैं, सो वी हैव टू सी कि वो बिहेवियर को इंक्रीज या डिक्रीज करने की रीजन क्या है वहां पे, ठीक है, वेदर वो बिहेवियर कितना प्रॉब्लमेटिक है, वो उसके बच्चे की लाइफ पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, बच्चे की डेली लाइफ पे उसका क्या असर आ रहा है, उसके फॉर एग्जांपल उसके इन्वायरमेंट पे क्या असर आ रहा है, उसकी स्किल्स पे क्या असर आ रहा है, उसकी हेल्थ पे क्या असर आ रहा है, मतलब बच्चों को किस तरीके से वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, नंबर 1। देन हम उस बिहेवियर को कंसिडर करते हैं कि हमने उसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। देन सेकेंडली हम यूजली सिर्फ जिस तरह वो मुझे चूंकि ऑब्सेशन लग रही है कि हर वक्त बच्चा सारा दिन एक कार्स के साथ खेल रहा है, तो वो मुझे ऑब्सेशन लग रही है, एंड देन आई एम लाइक नहीं मुझे तो उसकी कार छुपा देनी चाहिए, बट मे बी अगर मैं इस तरह से एकदम से कर दूँ तो वो बहुत ज्यादा डिस्रेगुलेटेड हो जाए, ठीक है, उसका कोई और बिहेवियर शो हो जाए, सो इट वेरीज इन केस टू केस। हाँ, वहाँ पे ये है कि मे बी आप उसकी जो ऑब्सेसिव आइटम्स हैं उसके साथ और चीजें इंकॉर्पोरेट करवाना शुरू कर दें कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीजें उसके लिए फन बनाएं, इंटरेस्टिंग बनाएं। सो देयर कुड बी डिफरेंट इंटरवेंशंस कि आप आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को स्लोली और चीजों की तरफ भी एक्सपोज करें, बट देन इट वुड रियली डिपेंड अपॉन केस टू केस। मैं यहाँ पे बैठ के कोई भी इंटरवेंशन आपको नहीं बता सकती बिकॉज इट माइट नॉट बी राइट फॉर द किड यू आर आस्किंग, और इट may because it may not generalize to everyone, ना? So it's a different in different cases. Another question is, someone is interested in working in the child related field, how should they start their career? Is an ATA diploma a must, or are there any other courses you would recommend? Okay, so mostly if you're working in the child psychology field, so you should have the proper qualification as a child psychologist. You would do your master's, your in psychology, in child psychology, and then you would do your hours and certain experience you should have before working. And the pehla experience after that is under supervision, and then you go and start practicing. And for the ABA, there I'm not any aware of an ABA diploma here in Pakistan that is verified by the HSC, but we have different organizations, different boards that are international based, जिनकी यहाँ पे courses and trainings करवाते हैं, but they have a certain criteria as well that you take that course and then you go under to the supervision of someone, then you do your certain hours, for example 300 hours and something, then you work under someone's supervision, you learn some skills, then you give the test of your skill competency, then you go and sit for the exam for the board and clear the exam, and even after that exam initially you work under supervision. So supervision and learning is really must for whatever you are pursuing. So yeah, there are different ways for to work in the child related field or to work in a specifically behavior related field as well. So yeah, I have addressed all the questions that were there in the chat. Yes, there's no other question over here. All right, so I think we are going to wind it up. I think the session was very thoughtful and a lot of people, I'm sure, learned a lot of things today. So thank you so much, Ishna, for leading today's workshop. And as always, I am so proud of each of our speaker, and I really appreciate whatever insights that you have shared with us today and the way you have responded to the questions of our participants. And also, I would like to thank participants for your great engagement. Definitely, without your involvement, I don't think any session can be any more impactful. Unfortunately, today I was not fully present as I had other things to do. Otherwise, I always try कि मैं भी questions पूछूं और मैं भी actively participate करूं. But today, unfortunately, I was not able to be fully present. But thank you so much, and I think we are going to just finish it up here. I'm going to turn on the WhatsApp group as well. So if anyone have any more feedback, any questions that you want to say, ask, any feedback you want to share with Ushna, I will be happy. She will be happy to listen feedback from you. And I always encourage to give your feedback because जब भी आप feedback provide करते हैं, तो it always help us to improve and be better
next time. So I will see you all soon. I think Monday ko we are having a next session. So I'll see you on Monday, inshallah. And thank you so much. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz.